हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी में आज हमें देखना है द न्यू टॉपिक दैट इज इवेंट। सो इवेंट मींस होता क्या है? सो द डेफिनेशन ऑफ इवेंट इज अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। इवेंट को क्या बोलेंगे हम? फेवरेबल आउटकम्स का सेट, and that set from the sample space. Favorable outcomes means what? अभी favorable outcomes means क्या है? The favorable outcome means which satisfy the given condition. Okay, favorable outcomes means क्या होता है? Favorable outcomes. Favorable outcomes means which satisfy the given condition. Given condition को satisfy करने वाले जितने भी outcomes है उसको बोलेंगे हम the favorable outcomes. Okay. So the set of favorable outcomes of a given sample space, sample space में से ही होंगे वो favorable outcomes and उनका एक set होगा, उस set को हम बोलेंगे the event. Okay. So for example, suppose if we throw a dice. Okay. If we throw a dice, then the sample space S is equal to, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा उसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दीज आर दी एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है वो? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल दीज आर इन सैंपल स्पेस। ओके, एक डाई थ्रो करने के बाद आपको एक तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5 नहीं तो 6। सो दीज आर दी आउटकम्स। नाउ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स व्हाट? लेट ए बी द इवेंट। यहाँ पे ऐसा हो गया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर इन द मल्टीपल ऑफ 2, अ नंबर इन द मल्टीपल ऑफ 2। ए कौन इवेंट है? ए इज द इवेंट that getting a number in the multiple of 2, 2 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स है वो हमें लिखना है। यहाँ पे कहां से लिखना है? वो सैंपल स्पेस में से लिखना है। सो 2 के मल्टीपल में कौन है? 2, 4 एंड 6, ऑल दीज आर इन द मल्टीपल ऑफ 2। सो द फर्स्ट आउटकम इज 2, then 4 and then 6, all these three are called as are in the multiple of 2. That's why these elements are called as a favorable outcomes. Okay, इन outcomes को क्या बोलना है? favorable outcomes बोलना है। favorable outcomes क्यों बोलना है? because these outcomes satisfy the given condition. condition कौन सी? 2 के मल्टीपल में होने की कंडीशन है। so 2 के मल्टीपल में होने की कंडीशन ये वाले outcomes satisfy करते हैं। so that's why these outcomes are called as a favorable outcomes. okay, and ये वाले favorable outcomes कहाँ से लिए मैंने? सैंपल स्पेस में से ही उठाए हैं। okay, a set of favorable outcomes of a given sample space, given sample space में से favorable outcomes उठाना है आपको। so that outcomes is called as a event. so इसको बोलना है event. so यहाँ पे क्या लिखना है? an event is the subset of sample space. sample space का सबसेट रहेगा कौन? सबसेट रहेगा सैंपल स्पेस का कौन? इवेंट। एंड इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मींस सैंपल स्पेस बड़ा सेट है, इवेंट एक छोटा सा सेट है। सो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आप यहाँ पे देखोगे 2, 4, 6, so 2, 4, 6 आर बिलोंग्स टू फ्रॉम, कहां से बिलोंग करते हो? सैंपल स्पेस से बिलोंग करते। सो दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड इवेंट। सपोज इसमें बी इवेंट है, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग an odd number on the uppermost face, ठीक है। सो नेक्स्ट इवेंट इज बी इवेंट। बी एक टाइप का इवेंट है। ओ वाला कौन सा इवेंट है? सो द इवेंट बी इज दैट an event of getting an odd number निकलने की इवेंट है
on the uppermost face of the die. Okay, on the uppermost face of the dice. So the B event contains how many elements? So there are odd numbers. Write down the odd numbers from the sample space. So the odd numbers are 1, 3, 5. These all three numbers are the odd numbers. So 1, 3, 5. These are the odd numbers. And how many elements are there? How many outcomes? N of 3. N of B is equal to 3. N of B is equal to 3. And in this set, N of A is equal to, there are 3 elements, 3 outcomes. That's why number of elements or number of outcomes in the event A is equal to 3. And number of outcomes in the event B is equal to also 3. So you always give number say 1, 3, 5. These are called as a favorable outcomes because these outcomes satisfy the given condition. So the given condition is getting an odd number on the uppermost face, and odd numbers are 1, 3, 5 from the given sample space. That's why these are called as a favorable outcomes, and this is one type of a event. The set of favorable outcomes is called as a event. Now we are going to study the types of events. Next concept is types of an event. Event के types. Okay. So the first one is certain event or sure event. First one is certain event or sure event. Sure event. So what is meant by certain event or sure event? Certain event or sure event means if there is an absolute surety, an event is called as a certain event. An event is called as a certain event if कब बोलना है आपको certain event? If there is an absolute surety, there is an absolute surety on the chance of its occurrence, on the chance of its occurrence. ठीक है, on the chance of its occurrence. ठीक है, सपोज आपने क्या किया, एक ही कॉइन पे एक साइड पे हेड लगाया, दूसरे साइड पे भी हेड लगाया, तो आपको श्योरली मालूम है कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलेगा, आपको हेड ही मिलेगा. वहां पे टेन नहीं होगा तो टेन नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट इवेंट इज कॉल्ड एज ए श्योर इवेंट. सपोज आपने डाइस के ऊपर क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बदले क्या किया, सभी फेसेस के ऊपर 1 नंबर को क्या किया, 1 राइट किया. सभी फेसेस के ऊपर क्या किया, 1, 1, 1, 1. 6 फेसेस के ऊपर 1 ही डाल दिया. तो आपको मालूम है कि डाई थ्रोन करने के बाद क्या मिलेगा, ओनली 1 ही मिलेगा. सो दैट इज द श्योर इवेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए श्योर इवेंट. तो उसको बोलना है श्योर इवेंट. नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और कॉम्प्लीमेंट इवेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट इवेंट. सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लीमेंट इवेंट. सो 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कॉम्प्लीमेंट इवेंट मीन्स व्हाट. ओके, कॉम्प्लीमेंट इवेंट मीन्स व्हाट. फॉर एग्जांपल suppose we thrown a dice, then we get 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is sample space. This is the sample space. Now A is the event of getting even number. Okay, A is the event of getting perfect square number. Suppose let A be the event of getting a perfect square numbers. ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलने की एक इवेंट है. सो दैट इवेंट ए इज इक्वल टू सो कौन कौन सी एलिमेंट आएगी उसकी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है, 1 is the perfect square and 4 is the perfect square. So 1, 4, these two numbers are the perfect square numbers, and that's why n of a is equal to what, n of a is equal to 2. How many outcomes are there, 2 outcomes are there, that's why n of a is equal to 2. Okay, तो इसको बोलेंगे हम ये फेवरेबल आउटकम से कंडीशन सेटिस्फाई करते.
अब हमें कॉम्प्लीमेंट इवेंट देखना है. सो कॉम्प्लीमेंट इवेंट मीन्स A complement is denoted by like this A dash or A to the power C, small c. ठीक है, A complement is denoted by A dash और A to the power small c. So दोनों में से कोई कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो. तो यहाँ पे A dash से कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया है. सो A dash is equal to कॉम्प्लीमेंट इवेंट मीन्स व्हाट, जो भी A में है A वाले एलिमेंट छोड़ देना है आपको एंड रिमेनिंग एलिमेंट सैंपल स्पेस में से लिखना है. तो सैंपल स्पेस में रिमेनिंग कौन है, 2, 3, 5, 6 रिमेनिंग एलिमेंट्स. ये में कौन कौन से थे, 1 and 4. तो 1 and 4 को छोड़ दिया तो बाकी 2, 3, 5, 6. सो 2, 3, 5, 6 इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट. सो इसको क्या बोलना है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट. सो उसका डेफिनेशन कैसे लेना है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट मींस व्हाट. सो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज okay, the set of all outcomes which are present in sample space. The set of all outcomes, the set of all outcomes which are present in the sample space, which are present in the sample space, okay, which are present in the sample space but not present in the event, but not present in the event, present in the event. ओके, ऐसे सारे आउटकम्स जो कि सैंपल स्पेस में, ये वाले आउटकम्स जो कि सभी सैंपल स्पेस में बट पर्टिकुलर इवेंट में एब्सेंट है. तो इनको क्या बोलना है आपको, दैट आउटकम्स इज कॉल्ड एज ए, और दैट इवेंट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट. ओके, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट. Then third one is impossible event. Next type is impossible event. Impossible event. So what do you mean by impossible event? Impossible means जो event possible नहीं उसको क्या बोलना है हमें, impossible. The impossible event is the event which does not contain possible outcomes. Okay, which does not contain possible outcomes. ओके, इसको बोलना है हमें इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट विच डज नॉट कंटेन पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम्स को जो कंटेन नहीं करेंगी उसको बोलेंगे हम, दैट इज इवेंट इज कॉल्ड एज ए इम्पॉसिबल इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, if we throw or if we toss a coin, then we get either head or tail. Okay, or another one is example, if we throw a dice, then we get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इनमें से कौन सा भी 1 डिजिट आपको मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 6 मिलेगा, नॉट 7. ओके, 6 मिलेगा. सो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है. सो आपका पास इवेंट है, सपोज लेट ए बी द इवेंट, of getting 7 on the uppermost 4, 7 on the uppermost face. ओके, अपरमोस्ट फेस के ऊपर 7 निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट. पॉसिबल है क्या वो, इम्पॉसिबल है. सो ए इज इक्वल टू 5 और ऐसे लिखना है उसको. एलिमेंट ही नहीं उसमें, आउटकम्स ही नहीं है, सो 5 लिखना है. ए इज इक्वल टू क्या लिखना है उसको, 5 लिखना है. आउटकम्स ही नहीं है उसमें. इज कॉल्ड एज ए इम्पॉसिबल इवेंट. मीन जो पॉसिबल नहीं है उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल. एक सीधा. नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फोर्थ इवेंट इज म्यूचुअली exclusive event. So mutually exclusive event means what, दो इवेंट का इंटरसेक्शन वो कैसे होगा, 5 होगा. दो इवेंट का इंटरसेक्शन कैसे होगा, 5 होगा. ठीक है, मीन्स दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा. राइट.
suppose we toss two coins simultaneously, then S is equal to HH, HT, TH and TT. Okay, if we toss two coins simultaneously, then we get the sample space head head, head tail, tail head or tail tail. Suppose A is the event of getting heads on both the coins. A is the event of getting, suppose मैं ऐसे लिख लेता, let A be the event of getting heads on both the coins. So दोनों भी कॉइन्स के ऊपर हेड मिलने का आउटकम है यहाँ पे. सो A इज इक्वल टू, एक एलिमेंट है, एक आउटकम है HH, सो यहाँ पे आएगा HH. एंड B be the event of getting tails on both the events. दोनों भी, सॉरी, बोथ द कॉइन्स, नॉट इवेंट्स, बोथ द कॉइन्स. दोनों भी कॉइन्स के ऊपर टेल मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या? है ना. एक आउटकम है TT. सो B इज इक्वल टू TT. B इज इक्वल टू T कॉमा T, सॉरी TT ओनली, नॉट कॉमा, TT. ओके, टेल. सो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, नाउ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. कुछ भी नहीं इंटरसेक्शन में. कॉमन है क्या कोई? इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ भी नहीं है. कॉमन दिखेगा का आपके पास? कॉमन नहीं, दैट इज फाइन. सो दैट इवेंट A एंड इवेंट B इज कॉल्ड एज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इन दोनों को क्या बोलना है हमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलना है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, नेक्स्ट इवेंट इज elementary event. Okay, fifth event is elementary event. So what is my elementary event? Elementary event means जो भी इवेंट ओनली वन आउटकम्स को कंटेन करता है. एन इवेंट कंटेन्स ओनली वन आउटकम. एन इवेंट contains only one outcome is called as an elementary event. तो उसको क्या बोलना है हमें? elementary event बोलना है. Suppose we thrown a dice, suppose we toss a coin. एक कॉइन मैंने सपोज टॉस किया, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस में H, T मिलेगा. आइदर H और T मिलेगा ना, हेड और टेल मिलेगा. सो मेरे इवेंट, लेट C be the event of getting हेड मिलने की इवेंट है मुझे, C वाली इवेंट. सो C इज इक्वल टू हेड ओनली, एक ही इन सैंपल स्पेस में, तो H आएगा. एक ही एलिमेंट इवेंट में, दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ए elementary event. That's why this event is called as a elementary event. And last one is sixth one, exhaustive event. So exhaustive event means what? Exhaustive event means दो इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस मिलता है. ओके, इफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, if union of two events is sample space, then the event is called as exhaustive event. So exhaustive event means क्या है? दो इवेंट का अगर यूनियन सैंपल स्पेस मिल जाएगा, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे. लेट उसका एक एग्जांपल बताऊंगा मैं यहाँ पे, कि अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपको मिलेगा हेड और टेल. ठीक है, आइदर हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा. सपोज लेट C बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. उसी टाइप D का एक इवेंट होगा, लेट D बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल. सो D में क्या आएगा? T आएगा. अगर आप C एंड D का दोनों का यूनियन करोगे तो आपको H एंड T मिलेगा, पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा. सो दैट इवेंट इज कॉल्ड एज ए एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो इस टाइप इवेंट्स के 6 टाइप्स है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स के टाइप्स, ए जनरल
टाइप से इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ओनली मोर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कल से हम इवेंट के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे, नेक्स्ट 5.3 भी सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।